Okay, so hello everyone. Today I am very excited because I do have an amazing guest. Why I am calling it amazing? There are several reasons. बहुत सारे reason है. Because जो majority of engineers का सपना है हमारे देश में, उन्होंने वो सारे पूरे करे हैं. Reason being he has been with DC, जो कि दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, वन ऑफ द टॉप कॉलेज है बीटेक के लिए. हमारे एक बहुत ही फेमस एक्टर है सुशांत सिंह, वो भी वहीं से पढ़े हुए थे. ठीक है, तो आप लोग इजीली अब पकड़ लोगे उस कॉलेज को. देन सेकंड थिंग, वी हैव IIT person also. So he is the guy who's from both the colleges. Okay. So ये है एक short and crisp introduction इनके बारे में. And then he has been from Delhi. तो दिल्ली के रहने वाले हैं. And then he has been working with a very big multinational bank. जो कि US में it's one of the top banks around. Okay. So welcome to you Rahim to my YouTube channel. First of all मैं Thank आपको you. welcome करूंगा. And why don't you introduce थोड़ा अपने बारे में, मतलब not a introduction, it's not introduction so called, but it will be more over आपके बारे में आप क्या बताना चाहोगे as a to start this session maybe to the audience. Okay. So first of all, thank you for inviting me to your channel. Okay. So regarding my introduction, as you said, I am from Delhi. I was born and brought up in Delhi only. I initially did my schooling from Cambridge School, but then because I got better educational opportunity, I shifted to Sardar Patel Vidyalaya, which is, I guess, the most premium, academically best school in Delhi. So वहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज पे भी देयर वाज अ लॉट ऑफ फोकस एंड वहीं से इट ऑल स्टार्टेड बिकॉज माय केमिस्ट्री टीचर वाज रियली गुड आल्सो माय फैमिली बैकग्राउंड माय फादर इज अ बिजनेसमैन वी हैव अ फैमिली बिजनेस तो प्री डिसाइडेड काइंड ऑफ था कि भाई इसको केमिकल इंजीनियरिंग ही करनी है सो Okay. आई गेव माय अच्छा. जेई एग्जाम इवन दो आई वाज गेटिंग बेटर ब्रांचेस बट स्टिल आई chose polymer science and chemical technology from DTU. Yeah. Then Okay. start cell BTech. So Yeah. उस दौरान जब बीटेक किया तो मतलब आई थिंक कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल प्रेफरेंस क्या थी, अगर आपको खुद एक ब्रांच चूज करनी हो. ठीक है, कि फैमिली बिजनेस अगर हम थोड़ा देर के लिए साइड में रखें, इफ यू चूज वन ब्रांच बाय योर ओन इंटरेस्ट, तो वो क्या होगी रहीम? मे बी दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन. I think it still would have been the same because the environment you grow up in, आपके around लोग क्या कर रहे हैं? I see most of my cousins are businessmen, and almost everyone has a similar trajectory. Either they are doing chemical engineering or they are doing industrial engineering or mechanical engineering, because we know ओके. that this is something which will be useful for us in future, for sure, in long term. ओके. लॉन्ग तो टर्म, राइट, टोटली मेक काइंड ऑफ सेंस. एनवायरनमेंट में आप ग्रो करोगे ना तो आपका भी इंटरेस्ट उसी डायरेक्शन में चला जाएगा कि भाई अल्टीमेटली आना तो धंधे में ही है करेक्ट, बिल्कुल. क्योंकि या मतलब लॉन्ग टर्म विजन भी साथ में लेके चल रहे हो और शॉर्ट टर्म पैशन भी साथ में लेके चलना है, मतलब इट्स काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ यस बोथ. ओके, ग्रेट. ओके एग्जैक्टली राइम, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. ठीक है, लाइक हम थोड़ा सा बेसिक जाते हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड. सो मे बी फ्रॉम द बेसिक साइड आई वुड से हाउ वाज योर स्कूलिंग राइम? सो हाउ वाज यू एज अ स्टूडेंट? एज अ स्टूडेंट आप कैसे थे, मतलब पढ़ने में हमेशा से ही एकदम तोड़ फोड़ रहे हो, या फिर यू ग्रेजुअली यू वर अ नॉर्मल स्टूडेंट देन यू स्टार्टेड बिकमिंग गुड? हाउ वाज योर स्कूल टिल 12th मे बी? अच्छा टिल 12th so when I was in Cambridge I used to top in every class and एवरी there is a क्लास. saying ओके. in every class सीरियल टॉपर. except हाँ except drawing I'm not good at drawing ठीक है ओके. so ओके. till 8th class this was the situation but then there is a saying कि if you are coming first in your class then you are in the wrong class. This is what my brother and my family realized and they made me वेरी डीप. change my ट्रू. school. Yeah, so when I went to Sardar Patel Vidyalaya, competition got increased, obviously. It took some time to get adjusted to the new culture because हाँ it हाँ. was way more liberal than my previous school. अच्छा. तो आप In कौन terms of से कौन से स्टैंडर्ड तक आप कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज में थे, और फिर कौन से स्टैंडर्ड में आप दूसरे स्कूल में गए? और ये आपके स्कूल्स कहाँ कहाँ पे हैं दिल्ली में, मतलब ये वाला स्कूल कहाँ पे है, देन सेकंड वाला स्कूल कहाँ पर है? so Cambridge school की multiple branches हैं all over Delhi. ओके. So अच्छा. primary school मेरा दरियागंज में ही था near चांदनी चौक. I belong from चांदनी चौक only. ठीक है? ओके, योर नेटिव And फ्रॉम चांदनी चौक. अच्छा. yeah, वाह यार. ओके. so ओके. तो वहां पे मेरा प्राइमरी स्कूलिंग हुआ एंड देन इट ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर यूज्ड टू गेट शिफ्टेड टू श्रीनिवासपुरी व्हिच इज नियर लाजपत नगर तो फ्रॉम 5th to अच्छा. 8th आई वाज देयर एंड इन 8th माय फैमिली टुक द डिसीजन कि भाई 9th क्लास से इसको और बढ़िया स्कूल में डालना है सो हम्म. दैट्स व्हेन द चेंज हैपेंड ओके. और व्हेन दिस चेंज वाज and हैपनिंग I राइम, personally तो believe Pradap हम्म. Patel
नहीं नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू, सॉरी। अच्छा राइम, तो राइम व्हेन यू सेड दैट कि ये आई थिंक हम सबकी फैमिली में होती है ये चीज ना कि इसको और बेटर स्कूल में डालना है, ये आई थिंक हम सबके पापा के माइंड में कहीं ना कहीं चलता रहता है। तो द थिंग इज कि जब हम उस स्टैंडर्ड में होते हैं, ठीक है, हमें तो वो विजिबिलिटी नहीं होती ना, हमारा माइंड उतना डेवलप होता है कि बेटर स्कूल क्या है, दिस दैट चीजें, राइट। तो व्हेन यू मूव्ड फ्रॉम दिस स्कूल टू दैट स्कूल, जो आपका कैम्ब्रिज था, इससे जब आप दूसरे स्कूल में शिफ्ट हुए, तो लाइक हाउ वाज योर ओवरऑल परफॉर्मेंस, लाइक नए स्कूल में जाने के बाद डिड यू थोड़ा सा नीचे आए या स्टिल यू वर द टॉपर इन दैट स्कूल आल्सो, लाइक हाउ वाज द इनिशियल फेज ऑफ योर न्यू स्कूल? एंड सेकंड क्वेश्चन विल बी योर पर्सनल फीलिंग, व्हाट वाज दैट, लाइक पर्सनल फीलिंग क्या थी, मजा आ रहा था नए स्कूल में या फिर पुराना बेटर ही लगता था तब भी? Okay, so if I talk about the recruitment process in the new school, इनिशियली जैसे नर्सरी प्राइमरी में होते हो तो आपने सिंपल इंटरव्यू दिया, नर्सरी राइम सुनाई, आपका हो जाता है. बट व्हेन यू शिफ्ट फ्रॉम अ गुड स्कूल टू इवन अ बेटर स्कूल, you have to give an entrance exam. And I still remember कि 9th class का वो एग्जाम था मेरा, and they were asking questions from 11th standard in the entrance test. ओके, अच्छा, That was the level of difficulty. So when I gave the हाई interview, लेवल I ऑफ, was like नहीं, मेरा नहीं होगा यहाँ पे. शायद ओके, शायद मैंने 30% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे, वो भी मुझे पता नहीं सही करे या नहीं. But ओके, still, ओके, I got lucky enough to get the chance to get into a better school. And रही बात सेकंड क्वेश्चन की आपके, initially for the first 5 to 6 months, it was a bad feeling for me because that same year my sister got married. तो एक तो उससे ओके, I was very attached, तो वो चली गई हाँ, हाँ, अपने हाँ, ससुराल. इन ठीक है, लॉज के बाद, हाँ, 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 इन-लॉज के पास. ठीक है. सेकेंडली, मेरे सारे फ्रेंड्स पुराने वाले स्कूल में, एंड ऑल ऑफ देम यूज्ड टू लिव नियर माय हाउस ओनली, क्योंकि प्राइमरी स्कूल मेरा दरियागंज ओके, था, तो चांदनी हाँ, चौक के आसपास कई बच्चे जाते थे वहां पे. तो अब अच्छा, उनसे अच्छा, थोड़ा डिटैच होने लग गया मैं. बट इवेंचुअली आई कोप्ड अप विद इट, एंड आई एक्चुअली लाइक द न्यू स्कूल मोर बिकॉज देयर वर वे मोर फैसिलिटीज एंड को करिकुलर ओके, एक्टिविटीज. okay. So you were rocking in the new school also from the first class itself, ऐसा right? कुछ नहीं है. इनफैक्ट टिल 10th क्लास आई वाज स्ट्रगलिंग, बट इन 11th अच्छा, क्लास आई चूज माय फील्ड बिकॉज आई हैड एन इंटरेस्ट इन साइंस. तो फिर आई हम्म, स्टार्टेड कोपिंग अप, बट स्टिल कंपटीशन वाज टफ. आई वोंट से कि आई वाज इन टॉप 3 आल्सो, बट या ओके, इट वाज अच्छा राहिम, यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं ना थोड़ा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा। यूजुअली क्या होता है, एक ना हमारे सोसाइटी में एक फ्रेज चलता है कि आप 10th 11th में होते हो ना, तो थोड़ी आपको हवा भी लगती है, राइट। ये एक फ्रेज है, नॉर्थ इंडिया में चलता है ये, कि बच्चे को जो हवा लगती है ना वो उसी एज में लगती है थोड़ी सी। सो डू यू थिंक कि थोड़ा इम्पैक्ट आया, जो एक्स्ट्रा चीजें भी थी, एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें थी, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं एजुकेशन गिरती है? आपको लगता है ये चीज, मतलब कि कहीं ना कहीं आदमी थोड़ा बहुत फोकस एजुकेशन से उठ के और चीजों पे आता है जो लाइफ में एक्स्ट्रा चीजें होती हैं? डू यू थिंक दैट, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दैट? See, it is not completely wrong to say कि हाँ भाई distractions बढ़ जाती है, because you are in a teenager, adolescence हम्म, का phase है, हम्म, सबके hormones are getting up, ठीक है, करेक्ट, तो करेक्ट, distraction रहता ही है. But I, in my case, till 10th class, I would say I was very dedicated. 11th 12th में फिर वो थोड़ा हल्का सा। school romance हो जाता है. आई थिंक दैट हैपेंस विद एवरीबडी, आई वुड से, मतलब दैट हैपेंस विद एवरीबडी, क्योंकि कहीं ना कहीं आई थिंक ना हमारी सोसाइटी में अभी भी ऐसा रहता है ना कि हम पेरेंट्स के सामने तो ओपन नहीं होते हैं घर में, वी आर नॉट दैट ब्लंटली ओपन, चाहे हम किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल और रिच और वट एवर। आई थिंक वो हर कैटेगरी में कॉमन है कि पेरेंट्स के सामने आप थोड़ा अपना जनरली बंद ही रखते हो, मुंह कम ही खोलते हैं हम लोग। तो आई थिंक दैट Correct. इज अ कॉमन थिंग। ओके, अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड राहिम, when you were in your 11th 12th, obviously, so I think that is the time, especially when you think about engineering, okay? तो सबसे पहली बात, आपकी लाइफ में इंजीनियरिंग वर्ड किसने बताया आपको पहली बार, मतलब यू बाय योरसेल्फ यू गॉट कि मुझे इंजीनियर बनना है, या फिर somebody you saw, जैसे जनरली हमारे कजन होते हैं, हमारे बड़े भाई बहन होते हैं जिन्होंने किया होता है, कोई ना कोई एक सजेस्टिव बंदा हो जाता है लाइफ में, तो आपको किसने सजेस्ट करा इंजीनियरिंग वर्ड कि यार राहिम ये कर सकते हो आप? Okay. So for this, I would give the credit to my chacha ka beta, my cousin, because he अच्छा, was the first person in our family to go abroad and do engineering from a very prestigious. I think you have heard of Harvard. हाँ, एवरीबडी हैव हर्ड ऑफ दिस। तो वहां से उसने करी क्रैक तो इंजीनियरिंग. आपकी तो, अच्छा मैं सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करूंगा, मुझे लगता है आपकी पूरी फैमिली सारे जीनियस लोगों की फैमिली है मतलब। नहीं नहीं, इस पे आते हैं, ठीक, इस पे आते हैं. Among my siblings, I am the most, I would say, intellectually strong.
तो एकेडमिकली वो मतलब एकेडमिक्स में मतलब यू आर द बेस्ट इन योर या जनरेशन। अच्छा, ओके। या सो देन आपके भाई ने आपको बताया जो कि वहां पे गए थे इंजीनियरिंग करने, तो ही टोल्ड यू कि यार इंजीनियरिंग कर लो, या लाइक हाउ इट वुड हाँ हाउ इट हैपेंड एक्चुअली। ओके सो ही केम फ्रॉम हार्वर्ड ऑब्वियसली फैमिली से कोई पहला बंदा गया है अब्रॉड वो आएगा तो हाँ उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा उसको देख के हाँ हाँ बाकी सब हाँ। लोगों को भी क्यूरियोसिटी होगी कि भाई इसकी वाह वाह क्यों हो रही है हाँ, करेक्ट दैट वे करेक्ट। थोड़ा इंटरेस्ट जागा फिर अपने को भी लगा कि भाई हाँ बात तो सही कह रहा है वो एंड काइंड ऑफ केमिकल और केमिस्ट्री was already in brain was wired in my brain from childhood because I used to see my father go to factory see हाँ how हाँ हाँ। things are working there तो वो इंटरेस्ट था हम्म। सो इट वाज काइंड ऑफ माइंड में था कि या तो इंजीनियरिंग करनी है या केमिस्ट्री ऑनर्स करना है एंड टू ओके टेल यू ओके आई आल्सो गॉट a call from St. Stephen's College for chemistry honors as ओके। well अच्छा, yeah ओके, because my so you did not percentage choose was that, really you chose DC at that time. yeah yeah Okay, अच्छा। And that was a big decision, यार। Again, it's like very prestigious college, like St. Stephen's. Everybody knows in our country, at least India में. I don't think like anybody will say कि नहीं मुझे नहीं पता है कौन सा college है। Hmm. But you took so many, I would say, very tough decisions. It's a tough call usually. It's very tough call. So kudos to that. That's why I'm telling, and I'm actually addressing the audience. So that's why, guys, I always say that this is an amazing guest. You can learn a lot from him. Okay. Swiftly coming back to the point. So Rahim, what do you think like when you were preparing for your engineering उस time पे है ना, इंजीनियरिंग के लिए जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो हाउ मच टाइम यू यूज टू डेडिकेट? हमें बहुत सिखाया जाता है कि दिन में 4 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, एक चलता है ये। हालांकि आई डोंट थिंक इट्स अ लॉजिकल बात, ये लॉजिकल बात नहीं है, बट इट्स मोर ओवर लाइक एकेडमिक्स, हर किसी का अपना अपना है। तो हाउ वाज योर थॉट कि किस तरह से तैयारी करी? हमारे टाइम पे एआई ट्रिपल ही होता था, मैं 10-12 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तो नाउ इट्स अ कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम, राइट? Hmm. तो Yeah. हाउ इट इज एग्जैक्टली, तो मतलब एंड तैयारी कैसे करी आपने? Okay. So since I told you I was academically strong from the starting, so I was taking regular classes. मेरे घर के पास ही एक सीबीएसई कोचिंग करके थी with the name of the हम्म। Academy of Science and Commerce. So अच्छा। वहाँ पे kind of I was anyways acing the place. तो हाँ हाँ। वहाँ पे मेरा kind of scene sorted and the faculty was really good. So ओके उससे मेरा सीबीएसई काफी जल्दी सिलेबस कवर हो रहा था. ओके। Apart from that, I used to devote 3 to 4 hours every week for JEE mains. एवरी वीक? ओके। एंड Yeah. एवरी वीक हाउ यू विल बाइफरकेट, मतलब इसको कैसे डिवाइड करते थे आप दिनों में? यार उसका ना मैंने फ्लेक्सिबल अप्रोच रखा था बिकॉज सिंस माय फैमिली इज वेरी बिग कभी भी कुछ भी हो जाता था लाइक कोई फंक्शन आ गया यू हैव अ किसी का जॉइंट बर्थडे फैमिली, इज इट राइम? या आपका आई यूज्ड टू जॉइंट? लिव ओके ओके, तो फिर तो टोटली टाइम शेड्यूल आपका आपके हाथ में नहीं था मतलब। या सो काफी फ्लेक्सिबल अप्रोच थी बट ये था कि अगर 4 घंटे करने हैं तो करने हैं एंड ऑल्सो इट गॉट प्रोग्रेस्ड लाइक जैसे जैसे एग्जाम की डेट पास आने लगी आई स्टार्टेड हाँ, डिवोटिंग मोर आवर्स बट 4 अगेन आवर्स, ओके। बोर्ड से एक एक महीना पहले आई स्टॉप्ड जेई मेंस का पढ़ाई आई जस्ट फोकस ऑन बोर्ड्स देन आई स्टिल रिमेंबर आई यूज्ड टू बी अलोन इन माय रूम सुबह 9 बजे ओके से लेके रात के 9 बजे तक टारगेट वाज टू कंप्लीट सॉल्व एटलीस्ट 3 क्वेश्चन पेपर्स ओके तो 3 आवर्स वाले सो 9 आवर्स उसमें यूटिलाइज होते रिमेनिंग ओके। 3 आवर्स पर ईटिंग ड्रिंकिंग गोइंग टू वॉशरूम एवरीथिंग इंक्लूडेड तो वो मतलब सेटअप पूरा था एंड लाइफस्टाइल अपने अपना पूरा 12 घंटे के शेड्यूल में पूरा जो लाइफस्टाइल हमारा होता है वो 3 घंटे में आपने पूरा स्क्वीज कर दिया था, बाकी 9 घंटे इज टोटली पढ़ाई। एग्जैक्टली अच्छा, व्हाट वाज योर मोटिवेशन उस टाइम पर? आई बिकॉज यूजुअली आई थिंक एक बार ना मोस्टली लोगों के साथ इशू क्या होता है जो मैंने देखा है, वो थोड़े टाइम ना कुर्सी पे नहीं बैठ सकते बहुत लंबे टाइम तक लोग। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम एक्चुअली, कि बंदा ना एक ये होता है कि 1 घंटा 2 घंटा बैठ के उसके बाद दे वांट टू गेट अवे आउट ऑफ दैट चेयर, आई थिंक। तो व्हाट वाज योर मोटिवेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि मुझे क्रैक करना है, या मतलब हाउ वाज इट वर्किंग इन योर माइंड कि मतलब कैसे ड्राइव हो रहा था वो मोटिवेशन, जो सेल्फ मोटिवेशन था पढ़ाई को लेके? Okay. So I'll tell you, the thing was कि I got a really good guidance from my school teachers and my coaching teachers from both the places. ओके दोनों ने अपना अपना मुझे बुक्स रेकमेंड करा एंड दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा पुश मिल रहा था कॉन्स्टेंटली कि भाई ये करो सो वो काइंड ऑफ एक्टेड एज अ मोटिवेशन प्लस आई वाज लाइक सिंस आई एम ऑलरेडी डिवोटिंग लेस टाइम इन जेई मेंस व्हाई डोंट आई एस माय बोर्ड्स because this is something which I'm good at. ओके I personally
don't think it I'm very good at competitive exams as compared to written exams जो supplementary ओके, होते हैं, ओके, because I know अच्छा, how to put my point forward in a good way. हाँ, हाँ, But करेक्ट, जब critical thinking आएगी, negative marking involve होगा, तब odds are against me. So I focused on ओके, my ओके, yeah मतलब you are much more good in your descriptive explanation. yeah. ओके, ओके, बट दैट्स अ गुड क्वालिटी एक्चुअली, बट बिकॉज़ आई थिंक आपकी राइटिंग भी अच्छी है, दैट इज़ ऑल Hmm. one more point. So that is a great combination, I would say. If you have a good handwriting and then आप descriptively अच्छे हो, तो एग्जाम में तो आप फोड़ सकते हो. That is very sure short formula. So you have that. Now, अच्छा, let's move forward थोड़ा सा इसमें आगे. And Rahim, when you were going forward towards the examination, जब आपका एग्जाम था, तो उससे पहले का जो मैं बोलूंगा 1 हफ्ता या जो 10 दिन का टाइम होता है बेसिकली एग्जाम से पहले जो आपका मेंस का टाइम था, उस टाइम पे आपका शेड्यूल कैसे रहता था? क्योंकि आई थिंक सबसे ज्यादा प्रेशर वो जो लास्ट का 1 हफ्ता या लास्ट के 3 दिन होते हैं ना, वो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है. तो हाउ यू कोप अप विद दैट एंड व्हाट वाज योर शेड्यूल एट दैट टाइम? Hmm. So उसमें ऐसा था कि since all of my preparation, like question papers previous years, all the everything was done. What I used to do was I used to open the internet, randomly select any kind of question related to that subject, and I used to try ओके, to solve it with within the time slot. कि भाई ओके, इस टाइम में इतने टाइम में मुझे इतने वर्ड्स का आंसर लिखना है. और अच्छा, also I used to ओके, relax. जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, have you heard? यस, यस, Yeah, that was एवरीबॉडी my हैव go-to. हर्ड, यस, यस, Yeah, that was my go-to show to as a stress टू buster. रिलीज द For स्ट्रेस बस्टर था yeah, काइंड ऑफ. ओके, तो वो that's great. Okay. So, when all this were happening, you mentioned one very important point, that you got very good guidance, right? I think आपके फादर भी और आई थिंक आपके जो टीचर्स भी थे, दे कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट. मतलब उन्होंने आपके माइंड में एक्चुअली बहुत ज्यादा आपकी चीजें एड ऑन करी, जिसकी वजह से आई थिंक आप ग्रो कर पाए, राइट? सो इफ यू yeah, पिक मे बी, ऑब्वियसली आई विल नॉट इंक्लूड पेरेंट्स यहाँ पे, ठीक है? पेरेंट्स आर ऑन टॉप ऑफ द हीप, आई वुड से. योर टीचर्स, आई वुड से. सो which are the like the most key teacher in your life? अगर आप मतलब नाम लेना चाहो, that's your call, I leave it up to you. But आपके स्कूल के टीचर या फिर आपके कोचिंग के टीचर, who are the teacher actually who gave you the path कि यार राहिम इस रास्ते पे जाना है हमें? And then एक और चीज मैं मेंशन करूंगा बिफोर आप आंसर करो. आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों की प्रॉब्लम यही होती है ना, लोग स्टडी को विंडो शॉपिंग की तरह लेते हैं, वो टीचर्स को फॉलो नहीं करना चाहते. वो कभी एक प्लेस पे पढ़ेंगे, यहाँ पे मजा नहीं आएगा, फिर दूसरे प्लेस पे वो हॉपिंग करते हैं. बट यू डिड नॉट डू दैट, जो मुझे आपसे बात yeah. करके समझ में आया, राइट? तो आई थिंक वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. चलिए पहले इसके बारे में बात करते हैं कि हु वाज द टीचर, एंड देन इस हॉपिंग के बारे में आएंगे. Okay, so my chemistry teacher is the one of my favorites. Still, she wishes me on my birthday, and I wish her at her birthday. शी इज इन Even though दिल्ली ओनली, लाइक शी इज बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली? yeah, she's शी इज, based out of Delhi. She lives in ओके, Parbarganj. ओके, So ओके. her name is Sadhya. सादिया मैम, ओके, Yeah, yeah. Like जिस बच्चे ने उससे उनसे केमिस्ट्री पढ़ी है, वो उनका फैन नहीं हुआ तो मैं मानूं. इतनी ओके. बढ़िया टीचर. And she used to be very हाँ, polite, and at the same time she used to be strict at the right points. तो ओके, combination काफी अच्छा था उनका. And for maths there was my coaching sir Vikas. He was really good. ओके, Like his ओके, teaching style, the kind of guidance, and जहाँ पे तुम stuck होगे, he will tell you in a way कि you won't feel embarrassed in a group of class, but तुम्हारा doubt भी clear हो जाएगा. ओके, तो अच्छा. that So was I his think approach. that's a great point to add on. Reason being, मतलब अगर आपका स्टिल टच है जैसे कि आप बता रहे हो अपने उन टीचर्स के साथ, आई थिंक अगेन दैट इज अ वे टू गिविंग बैक. दे गेव यू समथिंग, नाउ यू आर गिविंग बैक द रिस्पेक्ट टू देम, वट एवर दे डिजर्व. सो दैट्स अ ग्रेट पॉइंट. मेरी साइड से भी थोड़ा वेल डन राइम ऑन दिस. इट्स रियली गुड टू नो दिस काइंड ऑफ थिंग. इट्स अ पॉजिटिव थिंग ऑब्वियसली, सो यू ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड बाय सच थिंग्स. लाइक इवन आई एम इन some contacts with some of my teachers. अब तो उनके बच्चे भी बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं. एक टाइम पे मैं उनके यहाँ पढ़ता था, तब मैं बोर्ड का एग्जाम दे रहा था. सो लाइफ इज मूविंग वेरी फास्ट. ओके, नाउ गेटिंग बैक टू वन मोर पॉइंट राहिम, दिस हॉपिंग थिंग आजकल स्पेसिफिकली आई वुड से, थोड़ा सा हल्का सा बैकग्राउंड दूंगा. जब हम लोग तैयारी करते थे तो इतना ऑनलाइन वाला कल्चर नहीं था. रीजन बीइंग इंटरनेट भी अवेलेबल नहीं था, क्योंकि साइबर कैफे जाना पड़ता था, 30 रुपए दे के आपको आधा घंटा बैठना पड़ता था. तो वो कल्चर एक अलग कल्चर था. अब कल्चर है आपके पास इंटरनेट है, यूडमी एंड कोर्सेरा, एड्यूरेका, फिजिक्स वाला, आई कैन नॉट नेम इनफ ऑफ देम.
इतने सारे लोग हैं पढ़ाने के लिए। तो आज की डेट में जो एक बच्चा है, मुझे ऐसा लगता है, बाकी I'll take your opinion on this, मुझे लगता है कि दे आर नॉट एबल टू डिसाइड वेयर दे शुड स्टिक। हम्म। आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। व्हाट यू थिंक अबाउट दिस राइम, दिस कल्चर, एंड हाउ वी शुड फोकस ऑन वन चैनल, या फिर हमें ऐसे हॉपिंग करते रहना चाहिए? लाइक हाउ हाउ यू विल सॉल्व दिस? So, इस case में I would say this question answers how I prepared for my MBA for CAT. हम्म। So ओके। I used to study from Unacademy. There are multiple educators. Each one has a different style of teaching. Each one is हम्म। solving different question on different topics. So what I ओके। used to do was I initially I took some time like a week or two to figure out कि भाई मेरा understanding का जो thought process है and जो हाँ teacher हाँ का पढ़ाने का process है are they हाँ in हाँ। sync? अगर वो sync में नहीं है then I used to shuffle, but I didn't used to take too much time in this. तो within 2 ओके। weeks I got it figured out कि भाई मुझे ये इस टीचर को ही पकड़ना है इस सब्जेक्ट के लिए. Like for CAT there is ओके। quantitative ability, verbal ability, logical हाँ हाँ। reasoning, and data interpretation. These four topics are there. So for each हम्म। topic I chose one teacher, and in case वो उस टीचर ने कोई particular topic जो एग्जाम में आने वाला है वो कवर नहीं करा, then I used to switch to other teacher. But वो एक टीचर fixate हो गया तो वो fixate हो गया. That was my approach. ओके। ओके, सो आई थिंक देन द पॉइंट आउट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन इज पर्टिकुलरली कि मैक्सिमम 2 वीक का टाइम हमें देना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, कि अगर आपको 2 वीक से ज्यादा, यू शुड नॉट ड्रैग इट, अदरवाइज यू आर Yeah. वेस्टिंग योर टाइम, So राइट? exactly, you are comparing too much, तो you will get confused. करेक्ट, आपने तीन दैट्स ट्रू। सैंपल उठाए, उसमें से जो आपको बेस्ट लगा, उसी को फॉलो कर लिया आपने, बस. करेक्ट। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट एडवाइस। आई थिंक गाइज, whoever इज सीइंग दिस वीडियो, आई थिंक आपको यही फॉलो करना चाहिए। रीजन बीइंग कि अगर आप ऐसे विंडो शॉपिंग वाले मोड में जाओगे तो खरीद कुछ नहीं पाओगे और पूरा दिन निकल जाएगा, जैसे कि होता है जनरल लाइफ में, राइट? हम्म. ओके, नाउ थोड़ा सा पीछे जाते हैं राइम। लेट्स टॉक अबाउट योर कॉलेज, योर इंजीनियरिंग टाइम। आप कॉलेज में आ गए, ठीक है, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आपका एडमिशन भी हो गया। देन व्हेन यू मूव टू द कॉलेज, सो हाउ वाज योर फर्स्ट डे एट कॉलेज? First day at college. Okay, so DTU, if anyone has been there, it is a very big college. काफी, it's circular in shape and काफी widespread है. There are acres and acres of grass. बीच बीच में buildings हैं थोड़ी थोड़ी. So first time when I entered the college, I got okay. So when I entered the college, I myself got confused and got lost कि भाई जाना कहाँ है, because there are long roads, and since I am from Chandni Chowk, वहाँ पे इतनी पास पास काफी ट्रैफिक है, गलियां गलियां नैरो नैरो सड़कें होती है वहां पे, आई एग्री निकल. टोटली, यस। तो वो था. प्लस माय डिपार्टमेंट वो साइंस डिपार्टमेंट which was diagonally opposite to the gate. So our department was the furthest from the main gate. तो पूरा घूम के जाना पड़ता था. So that was ओके, there. अच्छा। Yeah. तो उस टाइम पे जब आप जाते थे तो साइकिल्स वाइकल्स होती थी कैंपस में, या पूरा वॉक ही करके जाना होता था? Okay. So for DTU सिंपल सा तरीका है. You get down at समीपुर बादली मेट्रो स्टेशन, येलो लाइन. वहां पे हाँ हाँ। उतरते ही कान में आप एस्केलेटर से नीचे जा रहे हो, कान में आवाज आएगी डीसी कॉलेज डीसी कॉलेज डीसी कॉलेज. वो 10 रुपए सवारी लेके आपको गेट पे हाँ, छोड़ देगा या 20 रुपए सवारी लेके अंदर छोड़ देगा, अच्छा। जहाँ पे भी आपकी तो डिपार्टमेंट है. अगर आप, जैसे आप बोल रहे हो राइम, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि जैसे आप बोलो कैंपस बहुत बड़ा है अगर, ठीक है, तो कैंपस में मतलब अगर रोम अराउंड करना है तो आप वॉक करके पूरा कैंपस कवर कर सकते हो, मतलब, और इज इट यस. वॉक करके कर सकते हैं आप बेसिकली? हाँ हाँ. ऑल द एक्सेसिबल अच्छा, पॉइंट्स आर क्लोज बाय, बट उसके बाद बाउंड्री दूर है. सो इट्स लाइक अगर आपको बाउंड्री डीटीयू दूर। लेक में जाना है तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, या आपको थोड़ा ओके। फॉरेस्ट टाइप एरिया जो है वहां जाना है वहां पे टाइम ज्यादा लगेगा. तो सिंस द एकेडमिक बिल्डिंग्स आर इन अ सर्कुलर शेप, जैसे सीपी में है हाँ ना, हाँ, इनर सर्कल, मिडल सर्कल, आउटर सर्कल, वही राइट सेम राइट। फॉर्मेट. द सेंटर देयर इज अ ओईटी, देयर इज अ ओके। क्लॉक टावर, देन अराउंड दैट ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड मैकेनिकल कैंटीन. ओके ओके, ग्रेट, गॉट इट, समझा। अच्छा, तो फर्स्ट डे आप गए, ठीक है, कैंपस वाला एक सेपरेट चीज हो गया, ठीक है, यू शेयर दैट एक्सपीरियंस। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन योर क्लासेस? इनिशियली कैसा लग रहा था इंजीनियरिंग में व्हेन यू एंटर्ड? आई थिंक फर्स्ट ईयर में तो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, राइट राइम, सबके? ऑल ब्रांचेस हैव कॉमन सब्जेक्ट्स। एक्चुअली आपकी इंजीनियरिंग स्टार्ट होती है सेकेंड ईयर से, जब आपके एक्चुअली कोर सब्जेक्ट आते हैं। तो इनिशियली दिस इज काइंड ऑफ अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी होगा ये, कि डिड यू लाइक द सब्जेक्ट वहां जाने के बाद? डिड यू लाइक इट, और इनिशियली कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जो लगते थे कि यार ये इररिलेवेंट है यार इस ब्रांच के? बिकॉज आई थिंक दिस हैपेंस विद मेनी ऑफ अस। Many of us. Okay, so I'll tell you.
first year of college, kind of all every other subject. Hmm. हमारा जो क्लास था, like there were 15 classes in total. Like the Hmm. batch was divided into 15 groups. So my Hmm. class, it had around 80 to 90 kids. Okay. I don't think any one of us scored a CPA more than 8 in the first year. The reason being, Okay. किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग है, किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तो ओवरऑल एवरेज इज डाउन. एंड आई रिमेम्बर मैंने लिया था पॉलीमर साइंस एंड केमिकल टेक्नोलॉजी. हमारा Okay. फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट था केमिस्ट्री का. हाँ हाँ. एंड आउट ऑफ 70 आई गॉट अ स्कोर ऑफ ओनली 24. 24. एंड या कितने आउट ऑफ नंबर पे 70. आप पास और फेल थे, कितने नंबर पे? Passing marks was ideally 40%, which is 28, and I got a 24. Okay. हाँ. So you failed in Out of that. या एंड आई वाज शिट स्केर्ड कि भाई 24 नंबर आए मेरे, और मैंने इसी सब्जेक्ट की तो इंजीनियरिंग ली है, क्या होगा मेरा आगे 3 साल. बट गुड थिंग अबाउट Totally. डीटीयू इज कि मार्किंग इज रिलेटिव, एब्सोल्यूट मार्किंग Hmm. नहीं है. सो इवन दो Hmm. आई स्कोर्ड अ 24 आउट ऑफ 70, स्टिल आई गॉट Hmm. अ A1 ग्रेड इन दैट सब्जेक्ट, क्योंकि बाकी सबका भी स्कोर ऐसा ही था. परसेंटाइल पे चल रहा था. ओके हाँ, ओके, गॉट इट. परसेंटाइल बेसिस पे, तो रिलेटिव मार्किंग थी. ओके. हाईएस्ट इन हाँ क्लास हाँ. शायद आई गेस 25 और 26, सबका ऐसे ही चल रहा था मामला. तो आई वाज लकी. पहले जो ऐसे ऊपर तक आ जाता है ना, घर पे क्या हाँ बोलना हाँ. होगा, 3 साल यही करना है, तो हाँ हाँ. बट इट वाज गुड. ओके. अच्छा अच्छा. ओके, ग्रेट. तो हाउ वाज द एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ टीचर्स कैसे थे आपके, लेट्स से कि वहाँ पे जब आप डीटीयू में गए, तो डू यू थिंक कि टीचर्स आर एक्चुअली अमेजिंग, मतलब इन डीटीयू, और लाइक यू फेल्ट कि मतलब देयर इज अ मे बी more improvement can be done in teaching style, or how, because why I'm asking is because most of us, like many of the people, जो मैं previous podcast में भी लोगों से बात करी है, तो many of them were from normal colleges, private colleges and all, and when I usually ask them, उनका सबसे बड़ा problem ये होता है कि जो टीचर होते हैं ना, वो उतने एक्सपीरियंस नहीं होते प्राइवेट कॉलेजेस में, राइट? क्योंकि सैलरीज कम होती हैं एंड ऑल, तो वो उतना लेवल का टीचर हायर ही नहीं करते कॉलेजेस, राइट? बट डीटीयू बीइंग अ प्रीमियम इंस्टीट्यूट ऑब्वियसली हमेशा से, एंड they can do that. So how was the standard of the teaching style and overall things? Okay, so in DTU, if I talk about my department, every teacher has a different teaching style. Some teachers like to send a PPT to you. आपको पीपीटी मिल गई, आप उससे पढ़ो, अगले दिन Hmm. क्लास में वो उसको एक्सप्लेन करेंगे. नहीं पढ़ के आए तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. सम अदर टीचर्स हैव Okay. अ डिफरेंट अप्रोच कि भाई वो आते ही बोर्ड पे लिखना स्टार्ट हो जाएंगे. यू हैव टू कॉपी द सेम थिंग, एंड उसके बाद इफ यू हैव एनी डाउट्स दे विल एक्सप्लेन. सम टीचर्स विल एक्सप्लेन इन क्लास, डोंट राइट एनीथिंग, बट Hmm. दे विल आस्क अ पॉप क्विज और सरप्राइज क्विज दे विल टेक. तो हर किसी Okay. का टीचिंग स्टाइल तो अलग है. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फिगर आउट कि भाई इसका टीचिंग स्टाइल क्या है, एंड व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच डू दे यूज टू मार्क यू. Okay, I think you have to select the, say you have to select the style which you fit in, कि आपको कौन सा वाला फिट हो रहा है. आई थिंक आपके लिए वो बेस्ट टीचर हो जाएगा. हाँ, वो अप्रोच है. Okay. You have to adapt Okay. basically, and that is something which is very important in corporate as well. कि भाई BAU टास्क तो हो रहे हैं, but ad hoc रिक्वेस्ट आया तो वो तुम कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे. That gives you the Correct. real edge over other Right. things. तो Right. जैसा टीचर पढ़ा रहा Totally है agree. उसके हिसाब से आपको अडेप्ट होना है. टोटली अग्री, टोटली अग्री. अच्छा, यहाँ पे राहिम आपने दो टर्म यूज करी. आई थिंक मैं थोड़ा सा ये व्यूअर्स को बता देता हूँ जिनको नहीं पता होगा. बीएयू इज समथिंग विच इज बिजनेस एज यूजुअल, मतलब कि जो आपको असाइन काम होते हैं. तो राहिम वाज सेइंग अबाउट देम कि जो आपको असाइन काम है वो तो आप हमेशा करते ही हो, बट कई बार उन कामों से जुड़े एड ऑन काम आ जाते हैं कि मतलब भाई आपको एप्पल काटना है, अब आपको एप्पल के साथ पपाया की पूरी सैलेड बनानी है, तो उसको अडॉक कहते हैं बेसिकली, टू पुट इट इन ए सिंपल वे, ताकि आप लोग हमारे साथ अलाइन रहें. अच्छा, नाउ मूविंग फॉरवर्ड राहिम, when you came in like third year and fourth year, तो उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा थॉट रहता है आदमी का, प्लेसमेंट का थॉट रहता है, राइट? बट फॉर इन योर केस यू हैड अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कि आई कैन गो बैक टू द बिजनेस आल्सो, राइट? Yeah. Now you can go to the placement also. So what was there in your mind at that point of time? Okay. So I'll tell you, my father gave me a free hand कि भाई बिजनेस तुम्हारे लिए खुला है, रखा हुआ है, बट इफ यू वांट टू एक्चुअली लर्न अबाउट थिंग्स कि हाउ एक्चुअल कॉर्पोरेट कल्चर वर्क्स, थिंग्स मूव अराउंड इन ऑफिस, तो पहले एम्प्लॉय बनो, उसके बाद मालिक की सोचेंगे. पहले Correct. तुम काम करना सीखो ना. Correct. अल्टीमेटली तो यू विल कम टू बिजनेस, बट यू शुड नो Correct. व्हाट गोज अराउंड, क्योंकि अगर तुम्हें वो काम करना आता है, कोई तुम्हें बना हाँ नहीं हाँ. सकता.
नहीं आता तो कोई भी तुम्हारा Correct. एडवांटेज उठा सकता है. That was the approach Right. that he took, and I think it has really helped me. क्योंकि now I Right. know It's a great inside advice. Hmm. I think it's an amazing advice. I think I would emphasize on this thing, guys. Whoever is watching us, कि this thing जो advice basically राइम को दी अंकल ने, and that has been helping. क्योंकि हम जनरली क्या सोचते हैं, मतलब हम डायरेक्टली ना बड़े बड़े को टारगेट करते हैं, हम डायरेक्टली गोल बड़ा रखते हैं, बट बड़े गोल तक जाने के लिए आपको ना एक सीढ़ी के थ्रू जाना पड़ता है. आई थिंक वो बेटर वे होता है, क्योंकि ज्यादा ऊंची छलांग लगाने पे फिर आदमी गिरेगा भी ज्यादा नीचे. तो आई थिंक दैट इज अ पाथ. तो ओके, दैट्स अ ग्रेट थिंग. नाउ व्हेन यू मूव्ड फॉर योर प्लेसमेंट, ठीक है, घर वालों ने बोला कि नाउ इट्स योर कॉल, सो यू ऑब्वियसली चोज फॉर प्लेसमेंट एंड ऑल, दैट्स व्हाई यू आर इन corporate now, right now, so I am assuming that. Then how is the things happening, like you were preparing for your companies, or college में ही आपने decide कर लिया था कि अब मुझे master degree करनी है, I'll not go for a company, I'll do a masters in your third year and fourth year? Okay, so I'll tell you what I did was I did in DTU you get chances to do 3 internships. So my first Okay. internship was related to my field, polymer science and chemical technology. I did an internship in at Delhi Milk Scheme. It's Okay. an animal horticulture something dairy type of thing. वहाँ पे Hmm. मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप हुआ. सेकंड इंटर्नशिप आई डिड इन MH Polymers Private Limited, but it was a non-technical internship, more of quality analysis, quantitative analysis, data analysis. Third one was Hmm. completely non-technical, completely different Okay. from my field. It was in some steel company where I was supposed to do analysis between two processes. तो उसमें एक्सेल यूज हो रहा है, पावर पॉइंट यूज हो रहा है, थोड़ा बहुत मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज हो रही हैं. अच्छा, एंड देन आई okay, फिगर्ड बहुत आउट कि भाई diverse. मेरा Hmm. रियल Hmm. इंटरेस्ट तो Hmm. एनालिसिस में ज्यादा है. So that's why I sat for companies only which were giving analytics role. Okay, okay. Yeah. तो यू डिड नॉट वेंट फॉर दोज कंपनी जहाँ पे एकदम ये प्रॉपर जो कोर Core, इंजीनियरिंग वाले रोल होते हैं. core chemical engineering वाले role में मैं गया ही नहीं. हाँ, राइट. One more reason is that in DTU, if you are in chemical engineering, the chances are higher that you will get paid more in a non-technical role, ओके. because the seats for companies which come for technical role for chemical, which are paying you higher than non-technical, are very few. तो मेरा बैच था 62 बच्चों का, and I think there were around 10 to 12 vacancies for companies which were paying you more than average of what a non-technical company was paying. So remaining 50 ओके. students, ओके. either they have to settle at less amount or they can pursue non-technical roles. That was the thing. ओके, ग्रेट. ओके, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आपका प्लेसमेंट का टाइम चल रहा था राहिम, तो सी you have been a very like you have been bit exceptional student obviously throughout your academics, which I can Yeah. see definitely. uh, how was your overall thought process, because आपके और भी friends थे जो उस time prepare कर रहे होंगे आपके college में, right? So what do you think, what are the generic challenges which people have in such big colleges also? Obviously I know इतने बड़े कॉलेज में जब आप पहुंचते हो तो आप कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे you already are better than most of the people, क्योंकि तभी आप वो रैंक ला पा रहे हो, ऑलरेडी आप वहां पे जाते हो. देन आपको ब्रिलियंट लोगों के बीच में ही compete करना है, बट वहां पे भी फिर एक काइंड ऑफ एक चैलेंज तो है ही अपने आप को बेस्ट प्रूव करने का. तो जो थोड़े एवरेज लोग थे, ठीक है, जो कि उतना मे बी एकेडमिक्स में अच्छे नहीं थे, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि कॉलेज में आने के बाद आई वुड से स्कूल तक वो अमेजिंगली एकेडमिक्स में अच्छे होते हैं, कॉलेज में आने के बाद उनको अगेन थोड़ी सी हवा लगती है या कुछ और वो चीजें ऑप्ट करते हैं, तो वो फिर डिक्लाइन होने लगती है उनकी एजुकेशन, राइट? ये बहुत लोगों के साथ होता है, राइट? आपने भी देखा ही है ये. तो जो मोस्टली लोगों का Yeah. चैलेंज होता है उस टाइम पे, प्लेसमेंट के टाइम पे, व्हाट डू यू थिंक दोस आर द मे बी 2-3 मोस्ट चैलेंज व्हिच पीपल फेस? 2-3 चैलेंज जो बहुत ही कॉमन चैलेंजेस हैं उस टाइम पे. Okay. So one of the challenge which they mainly face is building up a resume. क्योंकि when you apply for a job, आपका इंटरव्यू बाद में होगा. First step is getting your resume shortlisted. Resume, So correct. for this, Totally agree. the things which company consider at my time also, right now and even in future. तो Right. these that एक तो आपका resume should be short and Hmm. crisp. Two-page Correct. resumes as a fresher doesn't make sense. Resume रखो अपना एक पेज का. Then comes the next part, that every sentence of whatever you have done should start with an action verb. कि भाई I conducted, achieved, delivered, suggested. Right. वो action verb at the starting of the sentence makes the sentence more important or efficient, effective for them.
Correct. Like तो impactful, I would say. So this is a very great point which Rhyme you are adding. It will give so much impact when somebody start to read. अगर कोई line भी पढ़ना शुरू करेगा तो शुरुआत ही एक heavy word से होगी जो कि I think mind में एक impact देगा पढ़ने वाले को. So that's a great point, Rhyme. And और क्या है? हाँ, what else सेकंड on है, this? if you are able to put numbers or values to your work, it is a good thing. Because suppose तुमने बोला कि भाई मैंने फेस्ट, like if you have a position of responsibility of a particular fest organization, फेस्ट Mm-hmm, ऑर्गेनाइज mm-hmm, फेस्ट ऑर्गेनाइज mm-hmm. करा, आपने बोला भाई Correct. I was able to bring crowd to my college and there were these many events. It doesn't make Correct. much impact. But if you say I was able to pull a footfall of more than 50,000 students Wordplay. for a 3-day event, so these Mm-hmm. values will make more impact. Because Totally otherwise agree. they don't Again, have. very good point. Very good Yeah, point. Great point. I think this is something all of us should follow. And I'm talking to audience. So guys, these are very important point. I would stress again. जो राहिम ने बोली हैं ये बातें आई थिंक आप लोगों को नोट भी करनी चाहिए. रीजन बीइंग कि ये एक्चुअली में प्रैक्टिकल बातें बताई जा रही हैं यहाँ पर. तो एक एक्चुअल अच्छा रिज्यूमे इज योर फेस टू द कंपनी, क्योंकि आपको फिजिकली तो देखा नहीं है और हम लोग ब्रैड पिट तो दिखते नहीं है, राइट? दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. सो योर रिज्यूमे वुड बी योर ब्रैड पिट फॉर द कंपनी. जो yeah, जैसे राइम ने बोला वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स डालना, वो बुलेट पॉइंट्स डालना एंड पैराग्राफ ना लिख के बुलेट पॉइंट में बात करना, क्योंकि yeah, पैराग्राफ पढ़ने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है. exactly. सो दैट्स अ ग्रेट पॉइंट राइम. व्हाट एल्स यू कैन थिंक ऑफ राइम, लाइक और क्या गलती करते हैं हम लोग या One more चैलेंजेस thing, वगैरह? one more thing on my mind is that suppose आपने अपना internship experience लिखा. There are 3 bullet points. So and next internship experience है. तो make sure कि उसमें भी 3 ही हो. Because it kind of gives a better look to your resume. And if the sentence is going for more than one line, मान लो 2 लाइन में sentence खत्म हो रहा है आपका, तो मेक श्योर कि बाकी सब बुलेट पॉइंट्स के भी 2 लाइन हो. उससे क्या होगा, आपका इंडेंटेशन इंप्रूव होगा. करेक्ट, ATS करेक्ट. software will recognize it as a better resume, which will increase your टोटली chances. एग्री. अच्छा, अच्छा रहीम, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा. एटीएस सॉफ्टवेयर क्या क्या होता है, थोड़ा सा ऑडियंस को बता दो, बिकॉज आई थिंक वी आर यूजिंग दीज वर्ड्स, उनको समझ में नहीं आएगा. थोड़ा सा ब्रीफ दे दो. Okay, so ATS software is a resume screening software which companies use. कि भाई एचआर यूज है, आई थिंक एचआर इसको ज्यादा यूज करते हैं. करेक्ट. हाँ. मान लो 10,000 एप्लीकेशन आ गए. HR doesn't have time to read each and every resume. अब मान लो किसी ने वर्क एक्सपीरियंस इधर ऊपर लिख दिया, अपना POR कहीं इधर उधर छुपा दिया, कहीं प्रोजेक्ट इधर छुपा दिया, तो वो सॉफ्टवेयर कंफ्यूज हो जाएगा. तो इट वुड गिव यू इट अ बैड रेटिंग. बट इफ यू वांट अ गुड रेटिंग, यू शुड फोकस कि भाई तुम्हारा रिज्यूमे शुड बी इन प्रॉपर ऑर्डर. कि टॉप पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, देन कम्स योर वर्क एक्सपीरियंस, देन कम्स योर इंटर्नशिप, then comes your academic achievements, then come your position of responsibility, and in the end you can mention about your skills and interests. Right, right. Rahim, this is very great point actually. So again, you have given such a valuable point. ये बहुत ही जरूरी है. And I think you have, when you are talking about this clarity, so clearly you are talking about it. So half of the people, I don't think they even think about this structure which you have just given. It's a very important structure actually. So everybody should follow it. हर किसी को करना चाहिए. Okay, so that's great, Rahim. I think great advice for all the people who are watching us. Okay, then from the interview perspective, Rahim, this question, अच्छा क्वेश्चन इस तरह से रखता हूँ, चलिए मैं आपके लिए कि अगर हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जनरली क्या होता है, हमारा एक रिटन एग्जाम होता है. रिटन के बाद फिर हमारा एक कोडिंग एग्जाम होता है कॉलेज लेवल पे, विच आई रिकॉल, एंड देन हमारा इंटरव्यू होता है, आई थिंक, Correct. राइट? तो यूजुअली क्या लोग गलती करते हैं, स्पेशली हम प्रीमियम इंस्टीट्यूट के बच्चों को फिर भी वो विजिबिलिटी होती है, आई वुड से रीजन बीइंग क्योंकि दे हैव एल्यूमिनाई नेटवर्क, दे हैव बीन सीइंग देयर Yeah. सीनियर्स क्रैकिंग सो मेनी बिग थिंग्स, Hmm. राइट? बट जो थर्ड ग्रेड कॉलेज वाले हैं, जो बेचारे स्टिल Hmm. स्ट्रगलिंग की कंपनी आने ही नहीं वाली, उनको पहले से पता है. तो जब वो ऑफ कैंपस भी जाते हैं उनको ये क्लैरिटी नहीं होती कि प्रिपरेशन क्या करनी है, राइट? सो राहिम, दिस क्वेश्चन इज, डू यू थिंक कि अगर कोई भी बंदा, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज का है चाहे वो प्रीमियर इंस्टीट्यूट का है, अगर वो अपनी कैट की प्रिपरेशन या गेट की प्रिपरेशन थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में स्टार्ट कर दे, स्पेशली बीटेक वाला, या फिर अगर एमसीए वाला है तो वो सेकेंड ईयर में स्टार्ट कर दे, ओके, कैट की प्रिपरेशन और गेट की प्रिपरेशन, डू यू थिंक कि गेट और कैट की प्रिपरेशन इंटरव्यू और आपको जॉब क्रैक करने में भी हेल्प कर सकती है? डेफिनेटली यस. बिकॉज अगर जब आपका इंटरव्यू हो रहा है, सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चंस वोंट बी आस्क्ड. They will करेक्ट. ask you questions based on problem solving. Like I remember
for non-technical roles, I would say, and even for technical roles, my friends have given interview. जब आपका कोडिंग इंटरव्यू के बाद जो नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है, उसमें दे आस्क यू केस स्टडीज और गेस्टिमेट्स और पजल्स हम्म, और ब्रेन टीजर्स. हम्म, हम्म, ऑल दीज थिंग्स काइंड ऑफ एंगेज योर ब्रेन, और वही चीज कैट कराने की कोशिश कर रहा है. क्वांटिटेटिव हम्म, एबिलिटी, लॉजिकल हम्म, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, यही सब तो है. So if करेक्ट. you are preparing for GATE or CAT, it will definitely हम्म, help you in your interviews. राइट राइट. सो आई थिंक गाइज, अगर आप किसी भी कॉलेज से हो ना, तो अपने थर्ड ईयर में स्पेसिफिकली अगर आप कुछ क्रैक करना चाह रहे हो, जॉब भी क्रैक करना चाह रहे हो, क्योंकि आजकल देखिए सब कुछ ऑनलाइन है, तो कैंपस के भरोसे तो नहीं रह सकते. आप ऑफ कैंपस भी जाते हो, और भी बहुत सारे तरीके हैं जॉब के. अब तो पोर्टल भी इतने सारे हैं, इतने सारे पोर्टल पे आप अप्लाई कर सकते हो. तो आई थिंक राहिम की ये जो एडवाइस है, यू गाइज कैन डेफिनेटली इंप्लीमेंट दिस, कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो कैट या गेट की, क्योंकि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती. दैट इज गोइंग टू, अगर आपका कैट क्रैक नहीं भी होता है ना, एटलीस्ट आप एक कंपनी को क्रैक कर लोगे, क्योंकि आप फर्स्ट राउंड रिटर्न ही होता है, और उसमें वही चीजें पूछी जाती हैं जो कि कैट के लेवल से बहुत नीचे होती हैं. Yeah. तो यू कैन क्रैक दैट, एंड देन कंपनी में जाके कैट की तैयारी कर लो, वो भी एक रास्ता है. तो लोगों को ये पता नहीं होता, जिनके अगर बड़े भाई बहन इस फील्ड में नहीं है, या उनका कोई नोन इस फील्ड में नहीं है, वो इतने लेवल पे नहीं सोच पाते. तो राहिम हैज बीन एडिंग दिस पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू, तो आप प्लीज ध्यान से सुनना इन बातों को. ओके, नाउ मूविंग ऑन. राहिम, जब आपका फर्स्ट प्लेसमेंट हुआ, हाउ वाज योर प्लेसमेंट, लाइक वेयर यू गॉट प्लेस, हाउ वाज योर जर्नी, थोड़ा उसके बारे में आप बताओ. Okay. So it is a funny story. ओके. DTU में there is a training and placement department. उसका एक HOD होता है. हाँ हाँ. उनके अंडर लोग होते हैं, वो लोग कांटेक्ट करते हैं कंपनी को. ठीक है. सो हाँ हाँ. एक पोर्टल बना हुआ है DTU का प्लेसमेंट, उसमें हम्म, अपडेट्स आते रहते हैं. यू गेट अ चांस हम्म, टू अप्लाई फॉर द कंपनी. फिर उसके बाद उस कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी मेल है, वो आपके पास आपके ईमेल आईडी पे आएगा. सो आई हम्म, अप्लाइड फॉर यूनाइटेड एयरलाइंस, एंड एक हफ्ता हो गया था, कुछ मेल आया नहीं. आई थॉट कि कंपनी नहीं आएगी, एंड देयर हम्म. वाज वेकेशन का टाइम था. तो आई वेंट ऑन अ ट्रिप विद माय फ्रेंड्स टू नैनीताल. आई ओके एम ओके. चिलिंग ऑन इन अ कैंप फायर एट नाइट, एंड आई सी मेरे जो ब्रांच की प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है, उसका कॉल आ रहा है मेरे पास कि हाँ. राइम आर यू कमिंग फॉर टुमारो. मैंने बोला फॉर व्हाट. कहने लगे डिडंट यू चेक योर मेल. मैंने बोला नहीं, मैं तो ट्रिप पे हूँ. तो उसने बोला अभी एक बोला घंटे आई एम पहले चेकिंग माई मैंने बॉन फायर, आई एम चेकिंग माई बॉन फायर, की आग प्रॉपर जल रही है या नहीं. वो कहने लगी मैंने अभी तुझे एक घंटा पहले मेल करा है कि कंपनी कल सुबह आ रही है, उसकी पीपीटी है, यू हैव टू बी हियर. मैंने कहा भाई मैं नैनीताल में हूँ, कैसे आऊंगा. इट्स लाइक आई डोंट नो, सिंस यू हैव अप्लाइड तो मैं आना पड़ेगा, और अदरवाइज यू विल बी बार्ड फ्रॉम द नेक्स्ट कंपनी. ठीक है. ओके I ओके. convinced all my cousins. We drove overnight from Nainital to Delhi. सुबह ओ. they drove me to the actual campus place जहाँ पे कैंपस में. ट्रेनिंग ओके ओके. कैंपस पीपीटी जहाँ पे हो रही थी. मैं कैश, बाकी सब लोग फॉर्मल्स में आए हुए, मैं ऐसी कैजुअल में आके बैठा हूँ पीछे, just to ओ. attend so that I could get debarred from the next company. And good thing was I got selected in that company the very next day. Oh So my the luck god. was working in my Great. favor. Okay. Okay. So Nainital to direct United Airlines. United Airlines is travel industry. So I told them कि भाई मैं अभी कल ही ट्रिप से आया, आई एम ए ट्रैवल एंथुसियास्ट. एंड सिंस दे सॉ कि भाई बंदा ट्रिप छोड़ के Okay. यहाँ पे कंपनी के इंटरव्यू के लिए आ रहा है, तो दैट गिव मी एन एज. हाँ, right. They would be much more impressed कि he's been coming like 350 400 kilometer for us. So we have to owe him Yeah, back. exactly. Okay, that's great. Very interesting. Very interesting. Okay. So then you got the offer letter and all on the same day, or they send it after some time on your email? मतलब मेल पे आया या कैसे? Okay. So उसमें ऐसा होता है कि you are shortlisted, that thing they communicate within 2 to 3 days, but offer अच्छा. letter आपका आता है बाद में. Like I got Okay. placed in September, but offer letter came in somewhere around January. ओके ओके, हाँ, गॉट इट. वो अच्छा रहीम, एक क्वेश्चन और आया, थोड़ा आई वुड से इट्स बिट वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, प्लेसमेंट के बाद डायरेक्ट वापस नैनीताल गए कि दिल्ली रुके? अच्छा, तो रहीम एक क्वेश्चन यहाँ पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो ये है कि तो फिर प्लेसमेंट जब आपका हो गया नेक्स्ट डे, कैजुअल्स में आप थे, ठीक है, बहुत सारे लोग फॉर्मल्स में आए हुए थे, उनका नहीं हुआ, लेकिन आपका हुआ उस टाइम पे,
तो जब आपका हो गया उसके बाद आप डायरेक्ट नैनीताल के लिए निकले कि दिल्ली में रुक गए? नहीं नहीं, मैं दिल्ली में ही रुक गया, वो ट्रिप वहीं पर ही एंड हो गई। अच्छा, ट्रिप पूरी करने वापस नहीं गए? एंड आई टेल यू अ फनी स्टोरी अबाउट दिस। आई गॉट ओके, प्लेस्ड इन 2019 सितंबर, ऑफर लेटर ओके, मेरा आ गया जनवरी में। एंड इफ यू अच्छा, रिमेंबर 2020 में कोविड हिट हुआ था इंडिया में, कोविड हिट हुआ था, करेक्ट, मार्च। करेक्ट, सो देयर वाज कंप्लीट लॉकडाउन एंड एवरीथिंग। तो राइट, अप्रैल में आउट ऑफ द ब्लूज आई गेट अ मेल फ्रॉम यूनाइटेड एयरलाइंस कि भाई दे हैव रिवोक्ड ऑल द ऑफर्स अक्रॉस द ग्लोब बिकॉज द ओके, ट्रैवल इंडस्ट्री हैज बीन वाज द वर्स्ट इंपैक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम। कोई ट्रू, फ्लाइट्स रन नहीं कर रही थी, कोई सब होटल बंद हो बुक गया नहीं था, कर रही करेक्ट, लॉकडाउन थी। की वजह से टोटली, हाँ, राइट, So राइट, they revoked all the offers. ओके, ओके, सो हाउ वाज दैट, वाज अ शॉक टू यू और लाइक यू वर एबल टू लाइक ओके था या फिर माइंड में कि मतलब यहाँ काफी ज्यादा बुरा लगा उस टाइम पे, हाउ वाज द फीलिंग? उस टाइम पे तो काफी बुरा लगा था। आई इवन कॉन्टेक्टेड द कंपनी कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, बिकॉज हाँ, इट वाज नॉट जस्ट अबाउट मी। दे selected around 10 students from our college. They might have ओके, selected around 1000 students all over India. उन ऑल सब के ओवर लिए इंडिया, राइट, था। बट एक दो दिन वो शॉक लगा, बट देन आई वाज लाइक घर पे खाली तो नहीं बैठना, कुछ ना कुछ तो करना है। दैट्स व्हेन आई ओके, स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर माय कैट। 2020 में जब ये इट्स लाइक अप्रैल के आसपास, अप्रैल मई के आसपास, ओके, अप्रैल ओके, के आसपास, क्योंकि एक तो नवंबर में एग्जाम होने, मेरे पास टाइम कम था, तो आई स्टार्टेड छह गिविंग मोर महीने टाइम। हाँ, राइट, राइट, हार्डली 4-5 महीने का टाइम था, करेक्ट, हाँ, 4-5 महीने का टाइम। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कैट। देन समथिंग गुड हैपेंड इन जुलाई। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर कि भाई तुम्हारा यूनाइटेड एयरलाइंस का ऑफर रिवोक हो गया था, इट वाज नॉट योर फॉल्ट, सो वी आर गिविंग यू अनदर चांस टू सिट इन अदर कंपनीज। And then a company with the name of Midland Credit Management came. It is a financial services company. ओके, I applied for it. I cracked the aptitude test, the हम्म, interview, the case study round, HR हम्म, interview, and I got selected in that company. And I started my joining date was 31st August, I guess. So ओके, थर्टी I थर्टी got फर्स्ट hired. सेम ईयर, जिस टाइम पे आप अपनी एक तरीके से कैट की प्रिपरेशन के बीच में थे, बिल्कुल मिड में थे। Yeah, ओके, ग्रेट। yeah. अच्छा, So इफ वी कैन कोट अ नंबर राइम, तो डी डीटीयू से या दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बेसिकली जब आप बीटेक करके निकलते हो तो व्हाट आर द एवरेज पैकेज विच यूजुअली पीपल आर गेटिंग इन टर्म्स, मे बी नॉट नंबर, मे बी कैन यू स्पेसिफाई ए रेंज की इतना इतना तो लोग निकाल सकते हैं अगर आप थोड़ा भी मेहनत करो तो? see, I'll tell you 4 years back का situation. अब हाँ, हाँ, obviously number increase हो गया होगा. So in करेक्ट, करेक्ट, 2020 when I क्योंकि passed out, कोविड के बाद आई थिंक पैकेजेस काफी इंप्रूव हुए हैं इंडस्ट्री में, कोविड के बाद बहुत पैकेज बढ़े हैं, राइट? बढ़े. So in 2020, average package you would get from DTU used to be between 8 to 12. 8 to 12 is the average package, okay, that is And average range. this is for branches which are not part of computer science, software or IT. For these three branches, the average was somewhere between 15 to 20. For computer science, you're saying computer science, IT, and all. Computer science, software and IT, yeah, these three. Okay, computer science, IT, and what is the third branch? Software. Software. Okay, तो मतलब बेसिकली जो IT रिलेटेड डायरेक्ट ब्रांच है, लाइक द पीपल हु आर स्टडिंग द कंप्यूटर्स थिंग, उनके लिए अपॉर्चुनिटी थोड़ी पैकेज की थोड़ी ज्यादा ही है शुरू से, ऐसा है वहां पर। ओके, Hmm. आई थिंक इंडिया में, क्योंकि रीजन बीइंग लाइक एज ए इंडियन वी यूजुअली वर्क इन आईटी ओनली, लाइक वी हैव द आईटी सिटीज, तो आईटी का हमारे यहाँ जॉब्स भी बहुत ज्यादा है, आई थिंक Yeah. दैट्स अ ग्रेट रीजन, बिकॉज दैट्स व्हाई ये जो पैकेज ऑफर होते हैं। ओके, सो इफ यू आर एक्सेप्शनल स्टूडेंट, लेट्स से इफ यू आर लाइक Hmm. बेस्ट ऑफ बेस्ट स्टूडेंट, सो व्हाट इज द मैक्सिमम पैकेज यू हैव सीन इन योर ईयर? आपके ईयर में सबसे हाईएस्ट पैकेज, एक्सट्रीम पैकेज कितना गया था, कौन सी ब्रांच का गया था? यार हमारे टाइम पे सीओई का एक लड़का था, उसका पैकेज लगा था अराउंड, आई गेस इट वाज मोर देन 1 CR 1 CR? आफ्टर बीटेक, और मोर देन 1 CR. ही वाज मोर देन 1 CR? हायर्ड, ओके, आई गेस उबर और कोड ब्लॉक्स, वन ऑफ दीस टू कंपनीज. उसका पैकेज 1 करोड़ प्लस था. एग्जैक्ट फिगर आई डोंट रिमेम्बर, बट दैट वाज द हाईएस्ट आई बट हैव 1 सीन CR प्लस था। अच्छा, इसकी राहिम, इसको जो ये जो भी बंदा था, सो ही गॉट प्लेस्ड इन इंडिया ओनली और लाइक ही वेंट टू अब्रॉड? अब्रॉड. अब्रॉड. Okay, so they give like, okay, as per abroad, I think that's the base package which they offer, क्योंकि वहां पे I think वो minimum wages वाला जो चलता है, तो I think, but हमारे हिसाब से देखा जाए तो हमारे हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे जो कॉलेजेस का लेवल है, उस हिसाब से I think this is more than exceptional. तो मोर देन I think ये तो वो वाली चीज है ना राइम, जब हम दिल्ली में, हरिद्वार साइड अपने एरियाज में, देहरादून कहीं भी जाते हैं तो बोर्ड पे वो लगा होता है
हाँ 1 करोड़ पैकेज। वही। आपने भी देखा होगा वो, राइट? अब इसमें क्या कैच है, 50 lakhs इज ESOPs, ई सॉप्स, करेक्ट, employee stocks opportunities. तो राइट, that he can't liquidate for the next 5 years. तो एक तरीके से वो करेक्ट। बॉन्ड बन गया कंपनी के साथ, फिर 5 साल बंदा यहीं पर ही काम करेगा, वो 50 लाख ओवर 5 years ही कैन वेस्ट आउट, रिमेनिंग 50 लाख इज द CTC, उसमें मल्टीपल चीजें होंगी इंक्लूडेड। मल्टीपल चीजें होंगी, राइट? तो कुल मिला के घुमा के उसको 2.5-3 लाख रुपए ही, 3 लाख ही मिलने हैं वहां जाके इन हैंड, हाँ मैक्सिमम। मैक्सिमम। ओके, बट आई थिंक इंडिया के हिसाब से अगर आप 3 लाख कमा रहे हो फ्रेशर लेवल पे, देन यू कैन बाय द सिटी। हाँ दैट्स इनसेन। या राइट, स्पेशली ऑन द फ्रेशर लेवल, इफ यू आर अर्निंग दैट मच, इंडिया में किसी भी टाउन में आप रहते हो, देन आप पॉश पॉश एरिया में रहोगे, सबसे जो एक्सपेंसिव एरिया है उस टाउन का। आई थिंक दैट्स क्रेजी अमाउंट, 1 CR एज अ फ्रेशर। ओके, okay, Ryan, let's move forward थोड़ा और आगे। It's about when you were moving from your this job to the preparation of CAT, फिर आपका IIT वाला जो एंट्रेंस हुआ, how was that happening? तो आपने ये जॉब ज्वाइन नहीं करी है, जॉब ज्वाइन करके फिर then you left it, how was that? ओके सो क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया था, मैंने जॉब पे, आई गॉट द ऑफर लेटर इन जुलाई दैट माय वर्क विल स्टार्ट फ्रॉम 31 अगस्त। तो हम्म, पहले तो 1-2 हफ्ता सेलिब्रेशन हुआ कि भाई आउट ऑफ नोवेयर कंपनी आई, उसमें सेलेक्ट पार्टी, हो गया, और पार्टी, पार्टी, ठीक है, पार्टी हो गई और एंजॉय चल रहा है पूरा। फिर हुआ कि यार चलो कैट के लिए पढ़ना स्टार्ट करा था, पढ़ ही लेते हैं। फिर कंपनी में मेरा कंपनी का फर्स्ट डे, अब फॉर्मेलिटीज वगैरह हो रही हैं, नॉर्मल काम चल रहा है। क्योंकि कोविड था तो आई हैड एन एडवांटेज कि इट वाज कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम एट दैट टाइम। सो okay, right, right, तो अगस्त सितंबर आई वर्कड वेरी हार्ड। इन अक्टूबर आई वाज लाइक यार कैट का मैंने फॉर्म तो फिल कर ही रखा है, लेट्स गिव इट अ शॉट। तो मैंने अच्छा, आप बेसिकली जॉब भी कर रहे थे और कहीं ना कहीं साथ में प्रिपरेशन भी अपनी आपने कंटिन्यू कर रखी थी, नॉट फॉर सो यू आर अगस्त एंड डूइंग। इन अक्टूबर, अगेन इन अक्टूबर एंड नवंबर, दीस 2 मंथ्स। हाँ, उस टाइम पे, हाँ, उन 2 महीने में हाँ मतलब बहुत हेक्टिक शेड्यूल था, एक तरीके से काम भी चलता था और देन प्रिपरेशन भी चल रही थी। हाँ। ओके, तो ओके, आई रिमेम्बर क्योंकि मेरा यूएस बेस्ड कंपनी था, माय वर्क टाइमिंग्स वर 2 to 11 बिकॉज यूएस ओवरलैप ओके, होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो करेक्ट, आई यूज्ड टू स्टडी फॉर माय कैट इन द मॉर्निंग। आई यूज्ड टू इन द स्टडी फ्रॉम मॉर्निंग में। 10 to 2, sorry 10 to 12, then take a 2 hours rest, then I used to work in my job. So that way I was ओके, giving 1 or 2 hours every day. 1 to 2 आवर। अच्छा राहिम, इफ यू ब्रेक दिस थोड़ा सा, आई थिंक ऑडियंस के लिए हम ये चीज ऐड करेंगे। अगर आप 2 घंटे पढ़ते हो तो व्हाट यू थिंक कि 2 घंटे की आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? एंड मैं थोड़ा ग्राउंड लेवल पे पूछूंगा इसको, एज इन यूजुअली लोगों की क्या हैबिट होती है, वो पढ़ रहे होते हैं, बीच बीच में वो अपना फोन उठाते हैं और बोलते हैं एक बार स्क्रॉल तो इसको मैं कर ही लूं। दैट्स वन हैबिट। देन पीपल हैव दिस हैबिट कि जैसे 30-40 मिनट्स होने लगते हैं, वो एक बार चक्कर मार के बाहर आ ही जाऊं मैं बालकनी में। हाँ व्हाट इज योर अप्रोच टुवर्ड्स दिस? जब आप 10 बजे बैठ रहे हो, व्हाट इज योर थॉट एंड हाउ यू हैंडल थिंग्स? फोन कहाँ पर रहता है, पानी की बॉटल कहाँ पर रहती है, चीजें कहाँ पर रहती हैं? व्हाट इज योर एक्चुअल थॉट? See, for me, my setup was just a simple desk, a thermos with a coffee, and a पानी की bottle with a glass. फोन रखा हुआ है साइड में उल्टा होके, ताकि कोई नोटिफिकेशन पॉपअप हो पता ना चले। बस उसमें एक अलार्म लगा हुआ है 12 बजे का, कि भाई 12 बजे यू हैव टू गेट अप। एंड आई ओके, यूज टू सिलेक्ट वन टॉपिक एवरी डे एंड स्टडी दैट थॉरली। क्योंकि मैं चाहूँ 2 घंटे में मैं क्वांट भी कर लूँ, वर्बल भी कर लूँ, लॉजिकल रीजनिंग कर लूँ, तो कुछ भी नहीं होने वाला। इट्स बेटर करेक्ट, यू टोटली पिक एग्री, अ यस, टॉपिक, और इन द इनिशियल डेज यू शुड फोकस ऑन योर वीकेस्ट पॉइंट्स, उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल कम। मान लो आप अच्छे से करके जा रहे हो इंटीजर्स का टॉपिक या अरिथमेटिक का टॉपिक, और वो आया ही नहीं, ज्योमेट्री का कोई सर्कल का टफ क्वेश्चन पूछ लिया, देन यू आर एम्प्टी हैंडेड। तो पहले के इनिशियल डेज में यू फोकस ऑन योर वीक पॉइंट्स, एंड जैसे जैसे एग्जाम पास होने लगे इन लास्ट 1 मंथ और लास्ट 2 वीक्स, यू शुड फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ओनली, कि उनमें मैं अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ा लूं, ताकि इसमें तो अगर क्वेश्चन आया तो आई एम 100% श्योर कि भाई ये अटेम्प्ट करना ही करना है। okay, 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 guys, I think this is a great point. Again, I am telling this and stressing on this again and again. This is again a super point which Rahim have given to you, तो इसको भी आप लोगों को नोट करना चाहिए, मैं डेफिनेटली बोलूंगा आप लोगों को। Now one more thing, Rahim, usually which I have been like, मैंने कुछ जो previous session किए हैं लोगों के साथ in my podcast only, so I have heard this thing from people कि usually when they
सिट फॉर स्टडी ना, जब वो पढ़ने बैठते हैं तो समटाइम दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स। ये बहुत ही प्रॉब्लम है लोगों के साथ, ओवर थिंकिंग कह लो इसको, या मतलब कुछ और जोन में चले जाते हैं सडनली, पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा ऐसे देखेंगे तो देन दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देयर एक्स गर्लफ्रेंड और फ्रेंड्स के बारे में सोचने पर लगे। एनीवेयर, इट्स नॉट द गर्लफ्रेंड थिंग ओनली, इट्स एनीथिंग, राइट? You go to your past. How do you handle that? Or you don't have that in your mind at all कि मतलब मैं तो जब पढ़ता हूँ मैं सिर्फ पढ़ता हूँ, मेरे माइंड में ये सब चीजें कुछ नहीं आता, नो ओवर थिंकिंग इन माई हेड। नहीं यार, ऑनेस्टली बताऊं तो ये चीज सबके माइंड में आती है, एंड दैट इज कम्प्लीटली नेचुरल। हम्म। ये है बिकॉज एम्प्टी रूम है, काम कर रहे हो, सन्नाटा है, माइंड में थॉट्स आएंगे। तो करेक्ट। इसमें यू हैव टू सी कि भाई कुछ ज्यादा ही डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो पहले सोच लो आराम से, बाद में पढ़ लेना। एक बार में एक ऐसे काम पूरी करो, चीज करेक्ट। साइड बाय साइड करोगे तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ना तुम इधर के हो ना इधर के हो, दो कश्ती में सवार होगे तो डूबेगी, वो चीज है। करेक्ट। करेक्ट, बिल्कुल सही। ओके, ग्रेट। सो दिस इज अगेन अ ग्रेट एडवाइस। ओके, तो जब रहीम उसके बाद आईआईटी में एंट्रेंस हो गया, ठीक है, कैट आपका प्रिपेयर हो गया, एंड आई कैन सी दैट आपने फुल फोर्स से तो अभी कैट की तैयारी करी नहीं। अगर आप फुल फोर्स से करते हैं, मुझे लगता है फिर तो आप आईआईएम बैंगलोर बोल रहा हूँ, आईआईएम अहमदाबाद में होते आप। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, क्योंकि या आपने 4-5 महीने वो भी एज अ साइड में तैयारी करी है, एंड देन यू आर गोइंग टू आईआईटी। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन आईआईटी? वाज इट बेटर देन, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो जाएगा, was it better than the DTU, or or both are different? Apple and oranges, we should not compare. What do you think? See, for me, it was a transition because in DTU I was a day scholar, in IIT I was a hosteler. पहली चीज तो ये Okay. डिफरेंट। बट इन Okay. जनरल इफ आई कंपेयर द फैसिलिटीज आई हैव इन IIT एंड इन DTU, so if DTU is here, IIT is definitely here, no Okay. doubt. Okay. I'll tell you why. Hmm. एक तो IIT में the kind of facilities there are, be it mess or hostel, room conditions, infrastructure, the speed of Wi-Fi, be it anything, you- be it pollution, everything is good at IIT. कोई भी चीज आपको खराब नहीं मिलेगी। Okay. सेकेंडली, यू हैव मोर फ्रीडम। आई टेल यू, ये थोड़ा पर्सनल चीज है बट Mm-hmm. इन Please. IITs your boys Hmm. are allowed to go to girls hostels from morning Hmm. 6 to night 12, and girls Hmm. are allowed to go to boys hostel from morning 6 to night 12. So if Hmm. you are able Hmm. to crack IIT, so your relationships are sorted. राइट। एंड आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ इंडियन कल्चर में थोड़ा सा हमारा टैबू है, और आई वुड से एशियन कंट्रीज जो हमारी हैं यहाँ पे ये थोड़ा टैबू है। अदरवाइज यूरोपियन कंट्रीज आप जाओ या वेस्टर्न, और भी आप और वेस्ट में जाओ, आई थिंक इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। अरे वहां और पे इसको हॉस्टल्स जितना ज्यादा, आउटसाइड इंडिया, इफ यू गो टू यूरोप और यूएस, डॉर्मेट्रीज जो बच्चों की होती हैं वो कॉमन होती है कि भाई ये रूम करेक्ट। लड़के का है तो ये वाला रूम लड़की का है, ऐसा कुछ करेक्ट। पार्टीशन। करेक्ट। और आई इन थिंक डीसी, वहीं से वो जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज है ना, मतलब वो आप खुद ही सेग्रीगेट करते हो। आई थिंक ये एशियन कंट्रीज में थोड़ा सा है, आई थिंक हम अभी भी पीछे हैं इसमें, क्योंकि आप खुद उनको एज अ ऑब्जेक्ट बना देते हो कि आई थिंक ये थोड़ा अलग रहे, आप थोड़ा अलग रहो, तो और क्यूरियोसिटी बच्चे के अंदर पैदा होती है। हाँ, इसी के रिगार्डिंग डीटीयू में देयर वाज अ मूवमेंट कॉल्ड पिंजरा तोड़, बिकॉज डीटीयू में ओके। ड्यूरिंग माय टाइम देयर वाज हम्म। सिचुएशन लाइक, बॉयज के लिए देयर वाज नो कर्फ्यू टाइमिंग, बट फॉर गर्ल्स दे वर सपोज्ड टू बी बैक एट देयर हॉस्टल बाय 10 PM। चलो नहीं ओके। अलाउड है दोनों को समझ में आता है, बट लड़कियों के लिए कर्फ्यू है। अब फेस्ट का सीजन है, राइट। तैयारी किसी ने मान लो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली लॉजिस्टिक्स में या हम्म। मार्केटिंग की, टीम का पूरा हो रहा है या डांस प्रैक्टिस है, दे हैव टू बी बैक इन देयर हॉस्टल बाय 10 PM, तो दे वर नॉट एबल टू एंजॉय। तो एंजॉय पिंजरा तोड़ प्रॉपरली। कैंपेन करके हम लोगों ने स्टार्ट करा था, सो दैट इक्वल राइट्स मिले लड़कियों को भी। एंड इट टुक अराउंड 6 months, बट फिर एडमिनिस्ट्रेशन मान गया था। Okay, oh, that's a great point. Yeah, actually, it's a great thing because these are the things which where we need to work. मतलब यही तो चीजें हैं जो आई थिंक, एक जो हम हमेशा वर्ड यूज करते हैं और बहुत चल भी रहा है पिछले कुछ सालों से, फेमिनिज्म। तो फेमिनिज्म की राइट चीजें ये हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट द क्लोथ्स, because Yeah. people don't understand that, and I think that's a great point which you guys have implemented for the different gender. It's a great commendable job, guys. Hmm. सो आई वुड से दिस इज अ ग्रेट पॉइंट अगेन। एंड देन जब आप आईआईटी में गए तो उस टाइम पे एजुकेशन वाइज भी आपने जैसे बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट लेवल पे है, फैसिलिटी डिफरेंट लेवल पे थी। सो जो आपकी उस टाइम पे लर्निंग रही एमबीए में, डू यू थिंक कि दैट वाज अगेन समवेयर मोर लर्निंग कंपेयर टू योर बीटेक, या फिर बीटेक में आपने ज्यादा सीखा, और बोथ आर टोटली डिफरेंट? बोथ आर डिफरेंट बिकॉज बीटेक में टीटीयू, अनलाइक अदर कॉलेजेस जो इंजीनियरिंग के होते हैं,
फोकस इज कि भाई तुम्हारा प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। लाइक आपको थ्योरी क्लासेस फिर भी भूल जाओगे, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, बट द थिंग्स यू हैव वर्कड ऑन हैंड्स ऑन, जैसे बीटेक प्रोजेक्ट हो गया, इंटर्नशिप्स हो गई, केमिस्ट्री लैब हो गई, या कोई सी भी लैब में आपने एक्सपेरिमेंट्स करें, यू स्टिल रिमेंबर दैट। तो वो प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा थी इन आईआईटीज, क्योंकि एमबीए में प्रैक्टिकल के नाम पे ऑल यू कैन डू इज मार्केटिंग और डू अ केस स्टडी। Apart from that, हम्म। it was more theoretical, but again, the level of knowledge the professors have in IIT, either they are from abroad, from a very prestigious institute, or they are IIM alumni. So their way of teaching is very good. ओके, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग बिकॉज रीजन बीइंग अच्छा टीचर ही फिर अच्छा गाइडेंस देके अच्छे स्टूडेंट प्रोड्यूस कर सकता है। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक हमने शुरू में भी इस बारे में बात करी, तो वो चीज कहीं ना कहीं एक एज अ एज काम करेगी व्हेन यू हैव सो मच डाइवर्स माइंडेड टीचर्स, राइट? Yeah. सो वो आपको बहुत ही वैल्यू ऐड करता है। ओके, Yes. अच्छा राइम, सो थोड़ा और आगे चलते हैं इसमें। देन व्हेन यू आर इन योर आईआईटी एंड वो पूरा लाइफस्टाइल चेंज हुआ, यू वर अ ग्रोन अप पर्सन दैट टाइम, देन व्हेन यू केम टू द जॉब एरिया, ठीक है, एंड Hmm. स्पेसिफिकली यू आर वर्किंग फॉर द एनालिटिक्स सेक्टर एज आई नो ऑलरेडी एंड विद दिस बिग बैंक, तो what are the top skills which you think कि जो एक उस लेवल पे जो बंदा तैयारी कर रहा है उसको सीखनी चाहिए, जो स्किल्स मैंडेटरी हैं जिसको एनालिटिक्स में आना है? आपको क्या लगता है कि मतलब वो क्या स्किल्स हैं जो कोई भी एक नॉन टेक बैकग्राउंड वाला बंदा भी, जैसे अगर सिविल ब्रांच का बंदा है या जिसने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा है, तो उसको वो क्या चीजें हैं जिनकी तैयारी करनी चाहिए और वो फिर एनालिटिक्स में एंटर हो सकता है? Hmm. So जैसे सबको पता ही होगा आज के टाइम पे जेन एआई इज अ वेरी ट्रेंडिंग टर्म। सो इसका जो करेक्ट। एआई है ना, एआई मशीन लर्निंग, these are not very tough to learn topics, and a lot of information content is available on YouTube, Coursera, Pluralsight, Udemy. राइट। So what you can राइट। do is you can start, you can enroll in one of these courses, get a certification, and that will really help your career, I would say, because ओके। you are competing with people जिनका ब्रांच ही वो है, तो they already राइट। have an edge. To compete करेक्ट। with them, you should know, you should show your credibility, तभी कंपनी तुम्हें हायर करेगा ना, क्योंकि you करेक्ट। have a civil background. How can the company राइट। trust you to work for them in that same role? Either you should have certification or you have a hands on experience, like कोई प्रोजेक्ट पे काम करो खुद से लेके, GitHub पे you should have something in your profile, then only you your credibility and chances of getting selected will increase. तो इस चीज पे फोकस करना वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ग्रेट। सो जैसे जेन एआई है राइम, आई थिंक अगर हम इसमें और कुछ चीजें ऐड करें, जैसे आई वुड थिंक ऑफ इज लाइक, लेट्स से अगर आप 2024 या 25 में अगर कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाह रहे हो, सो आई थिंक विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू शुड स्टार्ट फॉर? आई थिंक C++ and C are outdated as of now. ओके। Best place to go would be Python, because that is used in almost every other company. If I talk about my organization, we are currently using SAS, and there is a reason behind that, because since it's a financial services company, the customer data is very confidential. Python, it is not that much secure, but if you are a normal user or you are working in a normal company, मान लो FMCG है, कंस्ट्रक्शन है, ऑटोमोटिव है, उसमें कोई इशू नहीं है, तो दे विल यूज पाइथन, बी इट एनी आईटी पाइथन, ओके। कंपनी, टीसीएस। ओके, एंड आई थिंक राहिम पाइथन इज द अगर वे। इसमें हम इसको एक एज अ स्किल सेट ऐड करना चाहें, तो आई थिंक एक जो प्रेशर है, आई थिंक फर्स्ट दे कैन गो फॉर एसक्यूएल। इट्स अ कॉम्बिनेशन, आई थिंक अगर वो एसक्यूएल सीख लें एंड देन वो पाइथन सीख लें एंड कोई एक विजुअलाइजेशन सीख लें, लेट्स से वेदर इट्स पावर बीआई और टैब्लो और व्हाटएवर, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन फॉर समबडी टू गेट इनटू द फील्ड। वो मतलब एंटर तो हो जाएगा कहीं ना कहीं रास्ते से, उसको मिल जाएगा अगर वो तीन चीजें सीख लेगा, राइट? आरडीबीएमएस इज मस्ट, तो उसके लिए सीक्वल इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि करेक्ट। कोई भी ओके। कोई भी कंपनी सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, बेसिक आपकी क्वेरीज सीक्वल वाली ही रहने वाली है। राइट। अच्छा राहिम, इसमें एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है, वो ये है कि जब आप जब कॉलेज से, किसी भी कॉलेज से, ऑब्वियसली यू कम फ्रॉम अ प्रीमियम कॉलेज, बट व्हेन यू कम टू अ एमएनसी, whether that's a bank or that's a healthcare company or whatever the company belongs to, मतलब सबसे ज्यादा चैलेंजेस क्या फील हुए कॉर्पोरेट में व्हेन यू थिंक अबाउट इट, कि जब आप नए नए आए थे इस फील्ड में, तो उस टाइम पे क्या चैलेंजेस लगते थे और क्या वो अब भी चैलेंजेस लगते हैं, या फिर यू थिंक कि नो आई वाज न्यू तो दैट्स व्हाई दे वर चैलेंजेस? Okay, so for me, biggest change was
पहले मैं दिल्ली में था, एमबीए मैंने आईआईटी कानपुर से करा, स्टिल नॉर्दर्न टच है। माय करंट जॉब इज बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर। सो राइट। नॉर्थ इंडियन के लिए साउथ इंडिया में सेटल होना, दैट इज अ वेरी कल्चरल बिग डिफरेंस नंबर वन। प्रॉब्लम। ओके। या वेरी डिफिकल्ट, एक क्योंकि माइंड से बॉडी से आप यहाँ पे हो, लेकिन आपको टेस्ट वो दिल्ली वाला ही चाहिए, वो खाना यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, तो आई वो थिंक ये एडजस्ट सब, हाँ, करके करेक्ट, दिस इज अ कॉमन फैक्टर, राइट। टोटली, आई कैन दैट वाज वन थिंग। अंडरस्टैंड। या एंड तो आई छोले वाज नॉट। कुलचे आज भी हम कहीं ना कहीं ढूंढते हैं, छोले कुलचे या कचौड़ी या जो हमारे चीजें होती हैं बेसिकली, राइट। ओके, नहीं मिलता है। तो दैट इज वन। हाँ हाँ। दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग कम्स कि आई नेवर एक्सपीरियंस्ड अ पीजी कल्चर। सो आई टेल यू माय ओके। स्टोरी। यहाँ पे माय कंपनी मेड अ स्टे इन अ 5 स्टार होटल फॉर फर्स्ट 14 डेज, कि भाई यू हैव 14 डेज, यहाँ पे तुम्हारी भी ट्रेनिंग चल रही है दिन में, शाम को यू हैव टाइम, तुम जाके अपने लिए एकोमोडेशन ढूंढ लो। ओके, आई रीच्ड आउट टू आई एक्सप्लोर्ड द प्लेसेस, एक समझ में आ गया पीजी, मैंने शिफ्ट भी हो गया। मैं ऑफिस से आया, गया ऊपर डिनर के लिए, एंड आई एम सीइंग यार प्लेट तो है नहीं यहाँ पे। अब मैंने करा ओ, मैनेजर को कॉल, ही टोल्ड मी कि अच्छा। भाई बैंगलोर का कल्चर इज कि प्लेट स्पून और वो सब आपको अपना लाना है, क्योंकि मेरे माइंड में ओ, था आईआईटी का एमबीए वाला कि मेस में है, मेस से प्लेट लोगे हाँ आप, अपना खाना मिलेगा, खाओगे, हाँ। प्लेट रखोगे, वो वॉश हो अच्छा, जाएगी। ये किस किस एरिया में था राहिम, ये वाला पीजी बैंगलोर में किस पर्टिकुलर एरिया में था पीजी ये वाला? दिस इज नॉट जस्ट माई पीजी, ये इन जनरल बैंगलोर में सभी पीजीज का प्रॉब्लम है, बट नाम बोलूं मैं तो आई एम लिविंग इन स्पाइस गार्डन राइट नाउ इन माराथली। तो ये माराथली के आसपास के पीजी, मतलब एज आपने बताया कि हर पीजी में यही कल्चर है कि आपको, आई हर थिंक, पीजी में जो इन बर्तन बैंगलोर। वगैरह यूज करने हैं, जो भी डिश थाली हाँ, वगैरह यूज करनी है, खुद की यूज करनी है आपको। खुद की यूज करनी, यू हैव टू बाय योर ओके। ओन, वॉश इट बाय योरसेल्फ, दे विल प्रोवाइड आई यू जस्ट इवन आई फूड। डोंट नो, ओके, इवन आई वाज नॉट अवेयर अबाउट इट। ओके, सो दैट्स हाउ इस, मतलब अब इस लेवल पे भी फैसिलिटी नहीं मिलती है जनरली आपको। हाँ, ओके। नहीं उनका, अब उनका थॉट प्रोसेस ये है कि भाई उन्होंने मान लो प्लेट्स रख दी, स्पून रख दी, कोई मिसिंग हो गया स्पून या प्लेट, कोई अपने रूम में रख के भूल गया, फिर कटलरी उनका सेट बिगड़ गया, दे हैव टू बाय इट अगेन। तो ओके, दैट, या उस सो आई सेंस थिंक में। दिस इज, उनका भी कुछ बैड एक्सपीरियंस रहा है, तो आई थिंक फिर ये चीज या जेनरिक कर दी उन्होंने, मे बी लोगों ने प्लेटें ले ली हैं उनकी, या चम्मच ले लिए हैं, या ग्लास। ओके, तो दैट्स द थिंग। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट चैलेंज विच यू मेंशन कि जब आप कल्चरल डिफरेंस में आते हो ना, तो आई थिंक एक लर्निंग, सीखना, एजुकेशन, करियर, वो या एक अलग चीज है, बट पर्सनल लाइफ में ही अगर आपकी लाइफ ही अच्छी नहीं है, तो ये सब कुछ आई थिंक खुद ही बैठ जाता है नीचे, देन यू कैन नॉट फोकस ऑन दैट। एग्जैक्टली। Okay, makes sense. Okay. Now, to conclude this, Rahim, let's say अगर हम conclude करें इस conversation को now, because we have been like discussing so many points. So, what advice you would give to someone जो कि बंदा एनालिटिक्स में आना चाहता है या बैंकिंग में आना चाहता है, तो आपकी जेनरिक एडवाइस क्या रहेगी कि ये आपको करना चाहिए एंड देन यू कैन इजीली कम टू दिस सेक्टर, और इसके नेगेटिव क्या है इस सेक्टर के जो आपने अभी तक फील करे हैं पर्सनल लेवल पे? ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स फर्स्ट, अगर आपको एनालिटिक्स में आना है, यू शुड बी थॉरो विद accuracy, your answer should be on point, you should pay attention to detail। अगर तुम Shouldn't. बड़ी सी रिपोर्ट बना रहे हो और तुम्हारे नंबर्स मिसमैच हो रहे हैं, देयर इज नो पॉइंट, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर नॉट एबल टू डिलीवर, दैट इज द वन प्रॉब्लम। सेकंड कम्स द मेन पॉइंट, यू हैव अ लॉट ऑफ एनालिटिक्स नॉलेज बट यू डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट योर वर्क। भाई मुझे आता 100 है, लेकिन दिखाना मुझे 10 भी नहीं आता, पीपल विल थिंक कि भाई Okay. इसको 10 ही आता है ना। इट शुड बी हम्म। अ बैलेंस, लाइक 70% आपको आता हो एंड 50% आपको दिखाना आता हो, और इट शुड बी करेक्ट। बैलेंस, कि जितना काम कर रहे हो उतना दिखाओगे तभी विजिबिलिटी मिलेगा। दैट इज आई थिंक करेक्ट। वन थिंग विच पीपल हु जॉइंड विद मी इन माय कंपनी, सम ऑफ देम लैक, कि भाई काम वो कर रहे हैं सुबह शाम, बट दे आर नॉट एबल टू शो इट टू द स्टेक होल्डर्स। गॉट इट। आई थिंक राहिम, इसको अगर इस तरह से हम फ्रेम करें इस बात को कि जैसे मैं बात कर रहा था 3 स्किल्स के बारे में, आई थिंक यहाँ पे मैं हल्का सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। इट्स लाइक कि टेक्नोलॉजी इज वन थिंग, बट टेक्नोलॉजी कैन नॉट, खाली टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आप एक्सेल हाँ, नहीं कर सकते। नहीं कर वो सकते। आप खाली एक लिमिटेड लेवल पे आ जाओगे एंड देन एक लेवल पे एग्जैक्टली। आप अटक जाओगे। रीजन बीइंग, आपको जैसे आपने बोला कि खुद को प्रेजेंट करना आना चाहिए। आई थिंक कम्युनिकेशन इज समथिंग विच इज अ वेरी बिग टॉपिक, जो कि हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं दबा हुआ है, क्योंकि आज भी लोग शाय हैं बहुत ज्यादा, वो बात नहीं बहुत करना चाहते।
दे डोंट वांट टू एक्सप्रेस। तो जो कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन को भी मैं दो चीजों में ब्रेक करता हूँ राहिम, इवन आई विल से दिस टू द ऑडियंस। कम्युनिकेशन एक होता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा आपका रिटन कम्युनिकेशन। दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। अगर आपको बात करना आता है, लोगों से, मैनेजर से डील करना आता है, कॉलीग्स के साथ अच्छा रिलेशन बनाना बनाना आता है, तो वो है आपका वर्बल। अगर आपको मेल भी अच्छा नहीं डालना आता और आप गलत मेल डालते हो, आपके मेल में इंपैक्ट नहीं है, तो भी आप कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में लैग कर रहे हो। तो ये दोनों चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। तो जो भी इस सेक्टर में, या आई थिंक आईटी में किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हो, चाहे आप C++, .NET, जावा, सो एंड सो वट एवर इट इज, यू शुड नो द कम्युनिकेशन। क्योंकि अगर आपके मेल में इंपैक्ट नहीं आएगा, चाहे आपने, आप, मैं कह रहा हूँ बैंगलोर के सबसे अच्छे पाइथन कोडर हो आप, पूरे बैंगलोर के, आपने 20,000 लाइन का कोड लिख दिया, बट इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस टू समवन, व्हाट इज द पॉइंट, राइट राइम? Yeah, ओके, true. okay, great. Okay, Rahim, I think I would say thank you so much for connecting with me. It was really a pleasure talking to you. Acha, Rahim, one more thing, one last thing, then you can also, you are free, okay? So the thing is कि what you usually love to do in your free time, जब आपके पास खाली टाइम होता है काम के अलावा, दोस्तों के अलावा, when you have your me time, जो जिसको हम कहते हैं me time कहते हैं जिसको, what you love to do? Okay. So in my free time, I like to pursue my hobbies, which are cooking food, fitness, and traveling. And regarding that, I have also created my Instagram digital creator account. Its name is Okay, rahim.inspires. Do follow it. okay. Yeah, guys, definitely follow the page he just mentioned. Okay. So what do you share on that, Rahim? What exactly things you share? Okay, so right now the I like started 2 weeks ago only, and I have around 500 followers. And the main content I'm sharing is regarding travel, lifestyle, and fitness. So I make Great, workout videos for great. people who are very busy in their job. They want to do home Right, workout. So right. उनके लिए, और if there is a beginner, तो वो content cover हो गया. Secondly, I'm doing unboxing of latest gadgets so that people get the idea about the good features of the product and the pad. Like Great. I give the honest opinion. Because credibility is again very important if you want to Very engage your important. audience. Then comes the Totally, third thing. totally. Yeah, third thing, which is travel vlogs. Because I almost travel every month to one place or Every month. another. So Mm-hmm. for that, I create content for myself anyways. So I Mm-hmm. share it with my community. So that उनको भी That's hidden great, gems of Rahim. That's around great. area Yeah, yeah. मिल. I think, guys, this is again a great example. You guys can see, right? He has been like doing so many good stuff. Like he has been doing so much of analytics work also. अपना career भी build किया है, IIT और DC वो सब crack करके now he is doing this also. और आप लोगों का problem ये होता है कि यार दिन हमारे पास time नहीं है. So just think about it. He also have 24 hours. आपकी घड़ी में भी 24 ही घंटे है. राहिम की घड़ी में 26 घंटे नहीं है. So just follow his page also, so you'll get to know so many new things. Okay. Okay, Rahim, I think then we are good to conclude. How did you felt, Rahim? Like how was the, what you would like to say maybe before we conclude this? See, I think it was a very engaging conversation. फ्लैशबैक हिट हो रहा था बार बार, नोस्टैल्जिया, बचपन की बातें, कॉलेज की बातें, दोस्तों के साथ क्या Great. क्या मस्ती करी, वो सब याद आ गया. जो अफेयर्स रहे कॉलेज के टाइम पे वो भी याद आ गए, सब कुछ याद आ गया. We have not spoken about them. We'll do it in some other session. Yeah, I hope she's Okay, not great. watching it. Yeah, I will. What you get, you can forward it to them later on. No, I think I hope my ex is not watching this. Okay. No, later on you can forward. Yeah, cool. Okay, no worries. Okay, Raim, I think thank you for joining me on this discussion and sharing your personal experience. आपने काफी कुछ शेयर करा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आपने बात करी. आई थिंक लोगों को ये बहुत ही चीजें नोट करनी चाहिए, जो कि आपने बीच बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हैं जो कि हेल्पफुल होंगी, एंड दे विल एक्चुअली हेल्प समबडी विद नो टेक्निकल बैकग्राउंड, और जो लोग एक्चुअली अभी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बीटेक में या अपनी मास्टर डिग्री में, एमसीए में, एंड एनी अदर फील्ड, तो वो उनको एक्चुअली में केटर करेगी उनकी जॉब को. ओके, so that's a, I think, great point. Okay, I think, Rahim, then we are good to conclude. So thank you for joining me again. I would say this, and maybe we'll do one more session going forward once people respond to us. Okay. Thank you for inviting me. Yeah, no, it's completely my pleasure. Totally, entirely my pleasure. Okay, Rahim, we'll Okay. move then. Okay, thank you. Bye bye.